Okay. So before we start, what is the session all about? Let me ask you a question. Have you ever thought why people with average intelligence outperform people with the highest level of intelligence in majority of the time? मैं आपको जो कहना चाहता हूँ उसमें बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी एजुकेटेड, बट काफी बार हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में. तो ऐसा क्यों होता है, राइट? अब बिफोर वी मूव टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी डिफाइन व्हाट इज इंटेलिजेंस, राइट? सो अगर मैं आपको पूछूं what do you mean by intelligence, how would you answer that question? So can you answer this question in chat? Intelligence according to you, clever, okay, ये इंसान इंटेलिजेंट है, ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है वर्सेस ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है. हम काफी बार ये स्टेटमेंट बोलते हैं. वर्किंग हार्ड प्रॉपरली, ओके, दैट्स वन. Presence of mind, smart, intellectual, conscious mind, being spontaneous, smart work. Rattamar is no intelligent. Somebody is actually giving the idea कि intelligence क्या नहीं होता है. That's very good. Intelligence means doing smart work. Oh, obviously, great. Smart work, skill, सोचने की skill. Good, good. So most of you are on the right track. So let's just try and move on. Basically, intelligence is your ability to acquire knowledge and skills and apply it. So intelligence को actually IQ बोलते हैं, which is called intelligent quotient. What is intelligent quotient? Intelligent quotient is a measure of person's reasoning ability. In short, it is supposed to gauge how well someone can use this information and logic to answer the questions or make predictions. So IQ is basically how well you can answer certain questions. If you are intelligent enough, you will be able to answer certain questions. Let me ask you a very basic question. Let's say I've given the series of numbers. So first number is 2, then second is 4, third is 8, fourth is 16. Now I want you to guess the fifth number. ये series में पांचवा number कौन सा होगा? 2, 4, 8, 16. Guess the next number and give me in the chat. (32). So obviously most of you answered it correctly. It is 32. Now I did not give you any idea कि ये कैसे किया गया है. आपने सोचा है. So you have applied your IQ or intelligence quotient to develop a logic that this is a series. Every number is doubling. So 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से by logic it is 16. So ये आपने अपना IQ test किया है. You have applied your IQ to answer this question. IQ test began to assess by measuring short and long-term memories. They also measure how well people can solve puzzles and recall information that they have heard. So एक और मैं आपको question पूछता हूँ. If you want to solve a puzzle and recall the information which you may have heard in your life, water is equal to ship, then air is equal to what? So I'm giving you a word pair. Water के साथ मैंने ship word को जोड़ा है. So air के साथ what would you try and link? So what would be your answer? Aeroplane, flight, correct? Right? So here also I did not give you any cue. मैंने आपको कोई suggestion नहीं दिया है that I'm going to discuss the vehicles. You applied your own logic to answer these questions. So this is basically application of your IQ or intelligence quotient, where you try and answer certain logical questions based on the understanding, memory, and reasoning ability that you have. This is called intelligence. What is emotional intelligence? So emotional intelligence का दूसरा नाम है emotional quotient or EQ. Now what EQ is? EQ describes an ability to monitor your own emotions as well as emotions of others. So intelligent quotient is basically knowledge, application, reasoning ability, and solving puzzle.
Whereas emotional intelligence or emotional quotient is identifying your emotions, identifying the emotions of other people, and managing your emotions better in social situations. When you become manager, you will have to deal with a lot of people. Up being a human being, you are also emotional, and the people with whom you are going to deal, they are also very emotional. Now, sometimes emotions go out of control. For example, you have rage, you have anger, you have fights, you have frustration, you have episodes of nervous breakdown. These all are the examples of uncontrolled emotions. So, emotional intelligence is basically how well you manage your own emotions to go through life and social scenarios. Now, let's move a little bit further. So, emotional intelligence is person's ability to understand their own emotions and emotions of other people and act appropriately using these emotions. Emotional intelligence is capacity of recognizing your own feelings and of those others for motivating ourselves, managing emotions in ourselves, as well as managing our relationships. All relationships, be professional, personal, has to be managed properly. And one of the key skill to manage all the relationship is managing your own emotions. So you are managing your emotions with your family, you're managing your emotions with your friends. Maybe when you join your MBA program, you'll be able to manage the emotions with your colleagues, faculties, and at a later stage, when you start working, you will also have to manage the emotions with the people who are working with you. EQ is critical for managing your behavior, moving smoothly through social situation, and making critical choices in life. EQ is basically emotional intelligence or emotional quotient. It's very important to manage your own behavior. It will help you in moving smoothly in all social situations, be it the working life, be it the personal life. Emotional intelligence का best part है, it never stops growing. As human beings evolve, you are better in terms of managing your emotions. Let me give you an example. When you were a child, you used to be, expressing so many emotions, and you never knew which emotions can be shown to people and which cannot be. But when we grow older, we try and manage our emotions very well. In some scenarios, you don't show emotions. For example, when you're dealing with, let's say, your parents, you will not try and get angry too much on them because there is a element of respect that you have to manage. When you come in the MBA program, even though you are angry with faculties, generally you will not demonstrate that emotions in front of them because you know that it's an authority figure. So काफी बार हम उन इमोशंस को सप्रेस करते हैं और उन इमोशंस को राइटफुली मैनेज कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. द बेस्ट पार्ट इज, आप जितना ग्रो करते हो लाइफ में, आपकी जितनी एज होती है, उतना आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है इफ यू प्रैक्टिस इट. सो काफी बार जो मैच्योर लोग होते हैं वो बहुत टफ सिचुएशंस में भी काफी बार स्टेबल रहते हैं. दे एक्सप्रेस स्टेबिलिटी इन situations which is painful or chronic, क्योंकि they have developed something called emotional intelligence through the experience of their life. Now, what are some of the areas of emotional intelligence? So, emotional intelligence के 5 broader areas हैं. A psychologist from America called Daniel Goleman developed this concept of emotional intelligence. So, the first step of emotional intelligence is self-awareness, which is basically identifying your feelings and labeling them. काफी बार क्या होता है कि आपको कुछ फीलिंग हो रही है, but you are not able to express that feeling. आपको ये पता नहीं चल रहा है कि whether it is anger, whether it is frustration, whether it is depression, or whether it is anxiety. So the first thing, the first sign of emotionally intelligent person is that he or she is able to identify exactly what is the feeling or emotion he is going through. काफी बार हमें कुछ फीलिंग होती है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि फीलिंग क्या है. मुझे क्या डर लग रहा है, मैं गुस्से में हूं, मुझे चिंता हो रही है. So basically, the first step is, can you identify exactly what are you feeling and can you label it? Now, the good thing about it, in English language, there are 3,000 words which explains different feelings. So in English,
3000 ऐसे वर्ड्स हैं which will express your different feelings. The best part about it, or the worst part about it, is out of all 3000, only 150 words are explaining positive emotions. Rest all are expressing negative emotions. So it goes without saying that generally we feel larger amount of negative emotions and we have more creativity in identifying the negative emotions. Positive emotions could be love, confidence, happiness, joy. Negative emotions could be depression, anger, frustration, right? So दो टाइप के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. द बेस्ट पार्ट, इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकता है, दैट व्हाट एग्जैक्टली आई एम फीलिंग. दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. Second is managing emotions. So finding ways to handle the emotions appropriate to situation. So this cartoon actually explains it perfectly. The gentleman is talking on a phone and somebody comes and bashes his table. Now, the natural reaction is he should stand up and try and react or stop or shout. But what he's trying to do instead is, would you excuse me for a moment? Somebody's trying to get my attention. So this is a cartoon, but it gives you a very important message that sometimes it is very important to handle your emotions properly according to the situation. So second step of emotionally intelligent person is that he is able to manage his emotions well in difficult situation, crisis situation, या situation जिसमें he is supposed to overreact but he doesn't react, right? So he doesn't react means he's not emotional less, but he is managing his emotions better to get through this situation. इस situation में उसका appropriate reaction क्या होना चाहिए? So second point of managing your emotional intelligence is manage your own emotions. This is the second point. The third point is motivation, using self-control to channel the emotions into the right direction. So आपके पास बहुत सारे emotions हैं. अब इमोशंस जो नेगेटिव हैं उसको पॉजिटिविटी या पॉजिटिवली कैसे यूज किया जाए. फॉर एग्जांपल, आपको एंगर है किसी चीज का, दैट यू आर फ्रस्ट्रेटेड कि आप अभी प्रोबेबली कैंपस नहीं आ पा रहे हो या कुछ सेशंस में आपको समझ नहीं आ रहा है, तो एक एंगर या फ्रस्ट्रेशन आप में बिल्ट हो गया है. अब उस इमोशन को पॉजिटिवली कैसे यूज करें? सो हाउ शुड आई चैनलाइज this situation or this expression positively so that I can get the best thing out of my life. So आप बहुत सारी चीजों के लिए एंग्री होते हो लाइफ में जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है. उस सिनारियोस को पॉजिटिवली आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. जनरली इट इज सेड दैट व्हेन यू आर वेरी एंग्री you have some pent up emotions that wants to come out. So the positive way to bringing them out is to play a sport or going for a gymming activity or going for a dance. So काफी बार कुछ लोग जो एंगर और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करने के लिए राइट प्लेटफॉर्म चुनते हैं. लाइक दे प्ले स्पोर्ट्स, क्रिकेट है या बैडमिंटन है या रनिंग है, दे गो फॉर जिमिंग या दे डू डांसिंग. सो आपको अपने इमोशंस को पॉजिटिवली बाहर निकालने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन. Fourth is empathy. Empathy is basically understanding the emotions of other people. This quality is very important if you want to become a successful manager. एम्पैथी होता क्या है कि आप दूसरे लोगों को समझ सकते हो. यू कैन अंडरस्टैंड, आप दूसरे लोगों के सिचुएशंस को समझ सकते हो. दैट इज कॉल्ड एम्पैथी, दैट व्हाई अदर पर्सन इज फीलिंग लाइक दैट. एंड इफ यू आर वेरी empathical, sometimes you can understand the emotion of the other person without they saying something. काफी बार आपके पेरेंट्स आपको देख के पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आज सेशन अच्छा नहीं हुआ, आज तेरी तबीयत खराब है. सो दिस इज कॉल्ड एम्पैथी, कि किसी व्यक्ति के इमोशंस आप बिना उसके बोले समझ सकते हो. दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. मैनेजर्स के लिए when you deal with subordinates, it's very important to understand the emotions of the other people. In family life also there are situations जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको कुछ बताएंगे नहीं, but आप में वो ability होनी चाहिए that you understand the emotions of the other people. So empathy is basically understanding the emotions of the other people and respecting them.
Fifth, the most important area of emotional intelligence is how do you handle your relationships. Abhi you may have friendship, then you have parents, then you have family relationship, but at a later stage you will have corporate relationships, you have relationship with your colleagues, bosses. So how do you really understand the emotions and build a strong relationship to develop interpersonal skills? Interpersonal skills are skills to interact with social scenario. It could be leadership skills, it could be negotiation skills, it could be persuasion skills. ये सारे skills बहुत important है in handling the relationship. So emotional intelligence का final pillar है how efficiently you handle the relationship. आप कितनी अच्छी तरह आपके relationships manage कर सकते हो. Now, what is the importance of emotional intelligence, intelligence quotient, and personality? So, IQ is basically how smart are you. आप कितना knowledgeable हो, आप कितना जल्दी problem solve कर सकते हो. EQ is आप कितना efficiently अपने emotions और दूसरे emotions को समझ सकते हो और manage कर सकते हो. And personality is basically per person's पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज. सो पर्सनालिटी में इमोशनल क्वोशंट भी आ जाता है, पर्सनालिटी में इंटेलिजेंस क्वोशंट भी आ जाता है. सो पर्सनालिटी इज एन आउटर assessment of person's individual thing, that he has a positive personality or she has a negative personality, या इसकी बहुत अच्छी personality है. When we use this word, we're trying to gauge about the person's inner self. Now personality, इंटेलिजेंट क्वोशंट और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक रिलेशन होता है. इंटेलिजेंट क्वोशंट जो होता है आपका आईक्यू, वो कुछ पीरियड तक बढ़ सकता है ड्यूरिंग योर टीनेज. उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है. उसके बाद आपका इंटेलिजेंट क्वोशंट बढ़ना मुश्किल है. पर्सनालिटी में भी बियॉन्ड अ लेवल, वंस योर पर्सनालिटी सेटल्ड, व्हेन यू रीच टू योर 20s, मोर और लेस आपकी पर्सनालिटी फिक्स हो जाती है और उसको चेंज करना मुश्किल होता है. बट द पार्ट अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस इज कि जितनी आपकी एज बढ़ती है उतना आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ सकता है. सो आईक्यू और पर्सनालिटी में एक लिमिटेशन है कि एक एज के बाद वो फिक्स हो जाते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. वेरएज इमोशनल इंटेलिजेंस में ऐसा है कि वो फ्लेक्सिबल होता है और एज के बाद आप उसको चेंज कर सकते हो. नाउ ईक्यू और आईक्यू को अगर मुझे डिफाइन करना हो, इट इज हेड वर्सेस हार्ट. सो दिमाग और दिल. आईक्यू जो है इट इज योर दिमाग, द थिंकिंग पार्ट, द ब्रेन. एंड ईक्यू जो है इट इज द फीलिंग पार्ट, जो हार्ट. सो पर्सनालिटी में यू हैव बोथ द थिंग्स, यू हैव आईक्यू ऑल्सो और ईक्यू ऑल्सो. पीपल विथ हाई आईक्यू जनरली थिंक थ्रू देयर ब्रेन, सो दिमाग से ज्यादा तेज होते हैं. और पीपल विथ हाई ईक्यू वो दिल से ज्यादा या फीलिंग से ज्यादा तेज होते हैं. राइट नाउ आप में कौन सा होना चाहिए? एक्चुअली आप में दोनों होने चाहिए. राइट अब दोनों का थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं. What is IQ? So IQ is intelligent quotient. It is measure of individual's personal information bank. इसमें क्या आता है? Memory, vocabulary, visual and motor skills. Motor skill is basically movement. Suppose you are a Kathak or Bharatnatyam dancer. How do you move? So the moving skills are called motor skills. So इसमें आता है knowledge, application, puzzle solving, problem solving. IQ जनरली मिड टीन, सो आपकी टीन एज में वो शुरू होता है और सबसे ज्यादा IQ होता है आपकी when you are 17 years old. It peaks up at the age of 17. उसके बाद इट इज मोर और लेस कांस्टेंट. सो पूरे एडल्टहुड में ज्यादा चेंज नहीं हो सकता है. सो आपका जो IQ है वो मोटे तौर पे when you become 17 to 20 years old फिक्स हो जाता है. उसके बाद उसको बहुत सब्सटेंशियली ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा बढ़ा या घटा नहीं सकते. द बेस्ट पार्ट अबाउट IQ इज इट प्रिडिक्ट्स 10 to 20% ऑफ सक्सेस इन लाइफ. तो आपकी लाइफ में सक्सेस का जो भी डेफिनेशन है, दैट यू वांट टू बिकम पॉपुलर इन द कम्युनिटी, यू वांट टू बी गुड पर्सन इन द फैमिली, यू वांट टू अर्न मोर, you want to be successful, IQ only decides 20% of your success, right? So rest is decided by the other factors. Now what is about EQ? Emotional quotient. So it is not fixed, it can change. So आपकी जो भी एज हो उसके हिसाब से वो बढ़ या घट सकता है and you can develop EQ.
इट कैन चेंज थ्रू आउट लाइफ. सो टीनेज के बाद भी एडल्टहुड में आप अपना इमोशनल कोशेंट इंप्रूव करते हो. एंड नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपका इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव होता है. 90% success of outstanding leaders will be attributable to the emotional intelligence, which is double the weight of IQ. तो इन्होंने एक सर्वे किया कि जो भी अच्छे या आउटस्टैंडिंग लीडर्स हैं बिजनेस में या पॉलिटिक्स में या नॉर्मल लाइफ में, उनमें 90% सक्सेस जो है वो उनके इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है. सो दे डिड अ कंपैरिजन कि आपकी लाइफ में सक्सेस फैक्टर में EQ का कितना कंट्रीब्यूशन है और IQ का कितना कंट्रीब्यूशन है. द ग्रीन वन इज IQ and the red one is EQ. So 90% of your success depends upon your EQ. वैसे भी आप नोटिस करो जो भी अच्छी लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं या बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, दे आर वेरी गुड इन मैनेजिंग द सोशल रिलेशनशिप्स, दे आर वेरी गुड मैनेजिंग द सोशल सिचुएशंस बिकॉज दे हैव बेटर इमोशनल कंट्रोल. वो अपने इमोशंस भी बहुत अच्छी तरह कंट्रोल रखते हैं और दूसरे इमोशंस को भी समझ के उनको अच्छी तरह डील करते हैं. नाउ इमोशनल कोशेंट का एप्लीकेशन कौन कौन से एरियाज में है, इन विच एरियाज यू कैन हैव द application of emotion quotient. So these are some of the areas. I'll explain 2 or 3 areas. Anger management. So anger management is a theory or therapy which is done by psychologists when you have uncontrolled anger and it is actually coming in between your normal functioning life. आपको जॉब या पर्सनल लाइफ में ऑपरेट करने में एंगर की वजह से इशू हो रहा है तो आपको एंगर मैनेजमेंट की थ्योरी में जाना पड़ेगा या थेरेपी में जाना पड़ेगा. सो उसमें आपके इमोशनल कोशेंट पे काम किया जाता है. देन टाइम मैनेजमेंट में भी इमोशनल कोशेंट का एप्लीकेशन है. डिसीजन मेकिंग में व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग इमोशन यू हैव समथिंग कॉल्ड गट फीलिंग. पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, गट फीलिंग होते हैं, तो उसकी वजह से जो आप डिसीजन लेते हो दैट इज बेस्ड ऑफ इमोशनल कोशेंट, राइट. सोशल स्किल्स, आप सोशली कितना एक्टिव हो, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आप सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट करते हो, दैट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द इमोशनल कोशेंट दैट यू हैव. नाउ which are the factors which will come under the emotional quotient? So EQ में basically 4 चीजें आती हैं. Personal competence is how well you manage yourself and social competence means how well you manage the social interactions. 4 pillars हैं emotional intelligence के: self awareness, self management, social awareness and relationship management. Let's just try and understand one by one. What is self-awareness? Self-awareness is ability to recognize how are you feeling, why are you feeling that way, and how it will impact the other people, right? So self-awareness का मैं आपको एक simple exercise देता हूँ. आप ये point जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको note करें और आप ये session के बाद उस exercise को follow करें. Over last week, what was the strongest emotions you had experienced? Beside each emotion, write down your accompanying body language. Last एक वीक में आपने कौन सा इमोशन स्ट्रांगली फील किया है? आप एंगर बहुत स्ट्रांगली फील किया है, हैप्पीनेस बहुत स्ट्रांगली फील किया है, डिप्रेशन फील किया है, जॉय किया है, राइट? सो एक ऐसा इमोशन आप लिखें जो पिछले एक वीक में आपने बहुत स्ट्रांगली फील किया है, दैट आपने उस चीज को स्ट्रांग इमोशंस के तौर पे ट्रीट किया हो. एंड सेकेंड, व्हेन यू ट्राई एंड राइट अबाउट दैट इमोशन, ऑल्सो ट्राई कि आपको पता कैसे चला उस इमोशन के बारे में. वेर यू एबल टू आइडेंटिफाई कि यही इमोशन है? एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, एंजाइटी थी, फियर थी, ये चारों इमोशंस में मोर और लेस डिफरेंस नहीं है. तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए थे? कैसे पता चला? जैसे व्हेन यू गेट एंग्री योर हार्ट बीट इंप्रूव्स, राइट, योर स्किन बिकम्स रेड, देयर इज अ ब्लड फ्लो इन योर फेस. सो इसको बोलते हैं बॉडीली सेंसेशन. सो किसी भी इमोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बॉडी आपको मैसेज देती है कि आप ये इमोशंस के अंदर हो. सो आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट इमोशन करेक्टली? सो ये एक एक्सरसाइज आप व्हेन यू गो आफ्टर द सेशन एक ट्राई करना कि कौन सा इमोशन आपने स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया था और वो आपको पता कैसे चला. आपने आइडेंटिफाई किया था कि आपका यही एक्सप्रेशन या इमोशंस है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. सेकंड इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है. स्ट्रेस टॉलरेंस,
सो स्ट्रेस टॉलरेंस क्या होता है कि किसी भी एडवर्स सिचुएशन में या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप कितना शांति से हैंडल कर सकते हो। अभी जो कोरोना पीरियड है वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। सो बहुत सारे लोग उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, इट इज अ की रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल। कुछ लोग उसको एकदम शांति से हैंडल कर पा रहे हैं, कुछ लोग उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सो स्ट्रेस टॉलरेंस मतलब आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर पाते हो। इम्पल्स कंट्रोल इज बेसिकली योर एबिलिटी टू टेक एक्शन इमीडिएटली, और एक टेम्पटेशन टू एक्ट होता है जो स्पॉन्टेनियस होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप रोड पे जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट होते हुए बच गया, तो नेचुरली आपका रिएक्शन ये होगा कि या आप उस व्यक्ति को गाली दोगे या उसको कुछ कहोगे, राइट, या फिर आप स्मूथली मूव आउट करोगे। अब ये जो इम्पल्स होता है वो स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है। इम्पल्स कंट्रोल मतलब आप स्पॉन्टेनियस एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं। काफी बार एक्सीडेंट होते हुए बच जाए तो लोग स्मूथली हंस के भी निकल जाते हैं या एक दूसरे को सॉरी बोल के भी निकल जाते हैं, लेकिन काफी बार लोग बोलते हैं और झगड़ा होता है या इश्यूज होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इम्पल्स कंट्रोल। इम्पल्स कंट्रोल एक एक्सरसाइज आई वांट यू टू डू कि नेक्स्ट वीक में अगर आपको किसी भी चीज को लेके गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन आता है तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? कैन यू कंट्रोल द इम्पल्स टू गेट एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड? कि आपको कुछ चीज समझ में सपोज नहीं आ रही है, सपोज ये सेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आफ्टर द सेशन डू यू गेट एंग्री? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ आप गुस्सा करोगे, बट उस चीज को आप रोक सकते हो। दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स कंट्रोल एक्सरसाइज। तो सेल्फ मैनेजमेंट में आप कितने अच्छी तरह स्ट्रेस को मैनेज करते हो एंड कितनी अच्छी तरह इम्पल्स या एक्शन को मैनेज करते हो। थर्ड इज सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में एम्पैथी, दैट आप लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो कि नहीं, लोगों की फीलिंग और थिंकिंग से एसोसिएट कर सकते हो कि नहीं, राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या आप बता सकते हो कि आप कोऑपरेटिव इंसान हो? कैन यू डील विद पीपल? कैन यू कंट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टिवली इन दी सोसाइटी, राइट। सो उसके लिए एक एक्सरसाइज है दैट इन योर नोटबुक राइट डाउन एटलीस्ट 3 थिंग्स दैट यू कुड डू व्हिच वुड बी एप्रिशिएटेड बाय द पीपल इन नीड। आप ऐसी कौन सी 3 चीज कर सकते हो सोसाइटी के लिए जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करें, या आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी 3 चीज इस सिचुएशन में आपको करनी चाहिए विच विल हेल्प अदर्स, राइट। फाइनली द लास्ट इज social management. Social management is how do you manage the social scenarios. So एक होता है रियलिटी टेस्टिंग। सो रियलिटी टेस्टिंग में बेसिकली आप किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली जज करने की कोशिश करते हो कि रियलिटी क्या है और आपका परसेप्शन उस चीज को लेके क्या है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत कॉमन होता है कि आपका परसेप्शन होता है कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है। वो परसेप्शन काफी बार लॉजिकल होता है, काफी बार इलॉजिकल होता है। सो रियलिटी टेस्टिंग में आप चेक करते हो कि आपका जो परसेप्शन है, आइडिया है उस व्यक्ति के बारे में, वो सच में जेन्युइन है या आपने अपने एंड से उसको बनाया है। दैट इज कॉल्ड रियलिटी टेस्टिंग, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यू एडजस्ट योर इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर इन द चेंजिंग सिचुएशन। आपकी एक थॉट पैटर्न बन चुकी है, उसको सिनेरियो के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो या आप रिजिड हो। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली मीन्स कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। दिस इज द पार्ट ऑफ सोशल मैनेजमेंट। अब आपको लगता होगा कि ये बहुत सारी थियरी तो हो गई सर, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमें पता चल सकता है इमोशनल क्वोशंट क्या है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग कॉल्ड एन ईक्यू टेस्टिंग एक्सरसाइज। उसके लिए आपको नोट और पेन चाहिए, राइट। सो प्लीज टेक आउट योर नोट एंड पेन। मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। सो हम एक EQ टेस्टिंग करेंगे जिसमें आपको कुछ मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे। टेस्ट कैसे करना है जस्ट आई विल शो यू। आप नोट और पेन रेडी रखिए, राइट। ये एक स्टैंडर्ड इमोशनल क्वोशंट टेस्ट है, इसको बोलते हैं क्वेश्चनर। सो क्वेश्चनर में कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, उसका आपको आंसर करना है दैट हाउ डू यू फील अबाउट इट। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन एक्सप्लेन माई एक्शन। ये स्टेटमेंट है, आई कैन एक्सप्लेन माई एक्शन। अगर यू एग्री कि हाँ आप सारे एक्शंस अपने एक्सप्लेन कर पाते हो,
तो आपका चॉइस होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज। और अगर आपको डिफिकल्टी है, यू कैन नेवर एक्सप्लेन योर एक्शंस, इट इज ऑलमोस्ट नेवर। सो इसमें ऑप्शन है ऑलमोस्ट नेवर, रेयरली, समटाइम्स, यूजुअली एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज। अब आपको क्या करना है, किसी स्टेटमेंट से आप कंप्लीटली डिसएग्री करते हो तो आपको नेवर ये क्लिक करना है या जीरो लिखना है, और किसी स्टेटमेंट से कंप्लीटली एग्री करते हो तो ऑलमोस्ट ऑलवेज लिखना है। और अगर आपका इन बिटवीन जजमेंट है कि रेयरली, समटाइम्स, यूजुअली, तो उस हिसाब से आपको पॉइंट्स देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन एक्सप्लेन माई एक्शन, इसमें मेरा आंसर था यूजुअली, तो मैं यूजुअली अपने एक्शंस को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। Sir, your voice is cracking, sir. Okay, I think it may be there. Voice is cracking. Okay, let me check. Better, yes, sir. Now it's okay. Hello. Yes, sir. But yes, sir. In between it's cracking. Could be a network issue, madam. But I'll just try and repeat in case. Fine. So अगर इस स्टेटमेंट से मैं यूजुअली एग्री करता हूं तो मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर इज 3 पॉइंट्स। फिर दूसरे में द अदर पीपल डोंट सी मी एज माई सेल्फ, तो उसमें समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं, सो 2, तो इसमें मेरा आंसर है 2 एंड सो ऑन। सो हर क्वेश्चन के लिए आपको एक आंसर सिलेक्ट करना है और उसके नीचे जो पॉइंट है वो लिखना है, एंड देन एट द एंड ऑफ द सेक्शन यू हैव टू डू द टोटल, कि इस सेक्शन का आपका टोटल क्या हुआ, राइट। सो वील डू दिस एक्सरसाइज फॉर सेल्फ अवेयरनेस। सो सेल्फ अवेयरनेस में पहला क्वेश्चन है आई कैन एक्सप्लेन माई एक्शंस। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने एक्शंस एक्सप्लेन कर पाते हो कंप्लीटली तो आप 4 पॉइंट्स दो, अगर आप कभी नहीं कर पाते हो तो 0 दो, या फिर डिसाइड करो रेयरली, समटाइम्स एंड यूजुअली। सो आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 और उसका पॉइंट लिखना है। सो क्वेश्चन 1 इज आई कैन एक्सप्लेन माई एक्शन। सो 1 के सामने आप अपना ऑप्शन लिखें, 0, 1, 2, 3, 4, क्या पॉइंट्स आप देना चाहते हो। सो प्लीज डू इट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या रिस्पॉन्स क्या होगा, और रिस्पॉन्स के नीचे जो यूनिट है उसको आपको लिखना है। सो व्हाट इज योर आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1? चैट में मत बताइए, आप नोट में लिखना। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर आंसर? अगर आप कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो तो 0 लिखिए, हर बार एक्सप्लेन कर पाते हो तो 4 लिखिए, और बाकी अगर रेयरली कर पाते हो तो 1, समटाइम्स में 2 और यूजुअली में 3, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कुड बी योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए क्वेश्चन 1 का आंसर है 3 पॉइंट्स, सो 1 इज इक्वल टू 3 पॉइंट्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अदर पीपल डोंट सी मी एज माई सेल्फ। तो काफी बार दूसरे लोग मुझे अपने तौर पे नहीं देख पाते हैं, दूसरे लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं। या अब जब भी आंसर करो तो आंसर जो है वो आपकी बेस्ट फीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। राइट आंसर क्या है उस हिसाब से नहीं होना चाहिए, आप क्या फील करते हो उसके हिसाब से। ये टेस्ट जो है उसका स्कोर कहीं शेयर नहीं होने वाला है, ना ही आपको कुछ बताना है, ये आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए है। तो जो भी आंसर करो उसको ऑनेस्टली आंसर करिए आप। अदर पीपल डोंट सी मी एज आई सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को जैसे देखता हूं वैसे दूसरे लोग नहीं देखते हैं। मैं अपने आप को हार्ड वर्किंग देखता हूं बट दूसरे लोग नहीं मानते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूं। मैं अपने आप को सिंसियर मानता हूं बट दूसरे लोग नहीं मानते हैं। तो व्हाट इज योर आंसर? तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अब आपके पॉइंट्स डिफरेंट हो गए हैं। सो नेवर में 4 आएगा, रेयरली में 3, समटाइम्स में 2, यूजुअली में 1 एंड ऑलवेज में 0। सो प्लीज गिव क्वेश्चन नंबर 2 and how many marks you will give yourself. That is for question number 2. Right? Question number 3. I understood the feedback that others gave me. अगर कोई मुझे फीडबैक देता है तो मैं समझ पाता हूं कि वो मुझे क्या कहना चाहता है। That is question number 3. So इसमें never, rarely, sometimes, usually या almost always. So select one option and the number. So थर्ड में कितने पॉइंट्स आप अपने आप को देंगे? 0 से लेके 4 में से कोई भी एक। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज आई कैन डिस्क्राइब एक्यूरेटली व्हाट आई एम फीलिंग। आपको कोई फीलिंग हो रही है
उसको आप एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकते हो टू द अदर पर्सन कि मुझे ये फीलिंग हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे फियर हो रहा है। सो अगर आप कभी नहीं कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो 0, हर बार कर सकते हो एग्जैक्टली तो 4, नहीं तो 1 2 3 में से जो भी ऑप्शन सूटेबल हो, राइट। फाइनली, फिफ्थ, थिंग्स दैट हैपन इन माई लाइफ मेक सेंस टू मी। मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसे मैं समझ पा रहा हूँ, उसकी सेंस मुझे आ रही है कि हाँ ठीक है। काफी बार ये होता है कि आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, जबकि काफी बार आपको पता चलता है कि मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि XYZ। So, उसमें अगर आपका आंसर नेवर, रेयरली, समटाइम्स, यूजुअली या ऑलमोस्ट ऑलवेज, डिपेंडिंग अपॉन योर आंसर, गिव मी द मार्क्स। अब आपने जो पांचों आंसर्स दिए हैं उसके पॉइंट्स का टोटल लिखिए। दिस इज योर सेल्फ अवेयरनेस टोटल। सो प्लीज राइट द टोटल, कि कितना टोटल हुआ है। हर क्वेश्चन में आपने जो पॉइंट्स दिए हैं उस हिसाब से आपका टोटल कितना हुआ है, राइट। और आपने जेन्युइनली आंसर किया है, राइट। आइडियल आंसर नहीं, आपने अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ऑनेस्टली आंसर किया है। So emotional self-awareness is the ability to recognize what are you feeling, understanding, and your habitual emotional response to the events, and recognizing how your emotions affect your behavior and performance. When you are self-aware, you see yourself as others see you, and you have a good sense of your abilities. तो अगर आप self-aware हो, तो दूसरे आपको जिस तरीके से देखते हैं उसी तरीके से आप अपने आप को देखोगे, right? अब I want you to give me the total in the chat. So आप chat में मेरे को बताइए what is your total. Somebody 17, 10, 8, 16, 15 and 9 and so on. Good. अब I just try and give you the interpretation. इसका interpretation क्या है? देखो, इसमें गलत या सही नहीं है, इंटरप्रिटेशन इसका मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पॉइंट्स जो है इस एरिया में 0 से 6 के बीच में है, तो ये एरिया आपको प्रायोरिटी में डेवलप करना पड़ेगा। तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम है, आपके पॉइंट्स सिर्फ 6 या उससे कम है तो आपकी अवेयरनेस बहुत कम है। 7 to 13 के बीच में है तो सम अटेंशन गिवन टू द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एरिया, यू फील वीकेस्ट, विल पे डिविडेंड्स। एंड अगर 14 to 20 है तो ये एरिया आपका स्ट्रेंथ है। सो 14 और 20 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो इट इज योर स्ट्रेंथ। 7 और 13 है तो आपका मॉडरेट स्ट्रेंथ है, ना आपका ये एरिया बहुत खराब है ना एरिया बहुत अच्छा है, मतलब मॉडरेट है। और 6 के नीचे है तो ये एरिया में आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। So this is how an IQ test is done. I'll share the entire file for your reference with the solution. Because of time, we'll not be able to do the entire file, right? So this is how emotional intelligence is tested through standardized test. और इसमें आपका जितना genuine answer होता है उतना आपको अपने बारे में ज्यादा पता चलता है, right? अब I'll just try and give you a quick understanding कि पांचों एरिया में क्या क्या चीजें आती हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस में इमोशनल अवेयरनेस, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। सेल्फ मैनेजमेंट में सेल्फ कंट्रोल, ट्रस्टवर्थीनेस, एडेप्टेबिलिटी, आपके सिचुएशन को कितना जल्दी एडेप्ट करके चेंज कर सकते हो, इनोवेशन, ये आता है। मोटिवेशन में अचीवमेंट ड्राइव, कमिटमेंट, इनिशिएटिव और ऑप्टिमिज्म आता है। एम्पथी में अंडरस्टैंडिंग अदर्स, डेवलपिंग अदर्स, सर्विस ओरिएंटेशन, आप कम्युनिटी सर्विस करना चाहते हो कि नहीं, एंड लिवरेजिंग डाइवर्सिटी, आप दूसरे बैकग्राउंड से आए या दूसरे स्टेट से आए या दूसरे रिलीजन से आए लोगों को रिस्पेक्ट कर सकते हो कि नहीं। सोशल स्किल्स में इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आप कितना अच्छी तरह कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कर सकते हो। चेंज कैटलिस्ट, अगर कोई बड़ा चेंज आ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंज आप ला सकते हो कि नहीं। Building bonds, collaborative cooperation, and team capability. These are some of the social things. Before I go, I'll tell you how you can improve your emotional intelligence. So number one, become emotionally literate. Label your feelings rather than labeling people and situation. व्यक्ति खराब है या सिचुएशन खराब है, उससे ज्यादा आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल या चेंज कर सकते हो उस सिचुएशन के लिए। अगर देखो, हमारा सिचुएशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, बट हमारा उस पे इमोशन जो हम
दे रहे हैं उस पर कंट्रोल है. सो बिकम लिटरेट कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इमोशंस राइट प्लेस पे है कि नहीं. डिस्टिंग्विश बिटवीन थॉट्स एंड फीलिंग्स. काफी बार बहुत ज्यादा हम कंफ्यूजन इस चीज को भी लेते हैं कि हमें थॉट और फीलिंग्स का डिफरेंस पता नहीं होता है. सो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थॉट एंड फीलिंग. अ थॉट ऑफ फाइट एंड अ फीलिंग ऑफ फाइट. अ थॉट ऑफ एंगर एंड अ फीलिंग ऑफ एंगर. डोंट एडवाइस, कमांड, कंट्रोल, क्रिटिसाइज और जज और लेक्चर्स टू अदर्स. अगर आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है तो आपको किसी को एडवाइस या कमांड या कंट्रोल या क्रिटिसाइज जज करने की जरूरत नहीं. टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीलिंग. इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान जो होता है वो अपनी फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, वो सिचुएशंस पे नहीं डाल देता है कि बिकॉज ऑफ सिचुएशन मैंने ऐसी फीलिंग रखी है. वैसा नहीं है. आपको अपनी फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. यूज योर फीलिंग्स टू मेक द डिसीजन. अगर आपको पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तो काफी बार ये फीलिंग आपको फीडबैक देती है कुछ डिसीजंस के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस सेशन के बाद आपको पॉजिटिव फीलिंग आई है तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट. एंड फाइनली, वैलिडेट अदर पीपल्स फीलिंग. काफी बार हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी फीलिंग भी नहीं समझ पाते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स फीलिंग आल्सो. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दूसरे की फीलिंग समझनी और उसको रिस्पेक्ट करना. आप ये नहीं बोल सकते तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो मेरे बारे में. यू हैव टू रिस्पेक्ट द फीलिंग एंड अंडरस्टैंड हाउ यू कैन इम्प्रूव बेटर. विद दिस